Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, children, you know that this is something that we have started. We have started to teach from Kota to all over India, and that to a quality level education, right? So, I hope आप लोग बहुत ज़्यादा you're sharing these videos so that more and more of the students can get benefited by it. So that you can give your exams with a very and you can pass your exams with very good marks, right? क्यों? क्योंकि we'll be doing questions which have already appeared in the last year papers and also questions related to that or like that, right? And I hope that you have completed all your course and this is the revision that I'll be taking. Not a quick one, of course you'll understand everything line by line, कोई problem नहीं होगी. So these are the Olympiads that we'll be dealing in. We'll be dealing for the 6th to 8th Olympiads, as well as good thing is that we'll be completing CBSE as well. So whatever that we will be teaching, it will complete or it will have CBSE, NCERT. It will be covering NCERT as well as the Olympiad level. So isn't it good for you? Like, isn't it a win situation for you? And that too for free, dude. So next is NTSC, NSC, JS, PRMO 6 to 10 school examinations of course. So right, I hope अगर आपने नहीं अगर सब्सक्राइब किया है तो please do it fast. These are our Telegram channels. I hope you have subscribed. If not yet, then please do it. Download the app, which is just similar to the WhatsApp. So you need to download the app, and you can subscribe to the relevant class. Right? If you are in 6th, then for 6th. 7th, 8th, 9th and 10th and so on. You have understood, right? You know this. So you can get the DPP study material as well there. And so today's topic that we are going to do is whole numbers. But before that, I would want you to take your paper and pen. This is not like this कि आप बस बैठ करके और भजन सुन रहे हो. नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप याद रखेंगे जो कुछ भी मैं बोल रही होंगी उसको आप सब याद रखेंगे. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब हम लेक्चर आगे का जब हम करेंगे तो आपको रिवाइज होना चाहिए, आपके पास नोट्स लिखे हुए होने चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू जस्ट नीड टू रीड दोज पॉइंट्स, राइट. ऑल्सो यू विल बी डूइंग द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद मी. आप मेरे साथ ही क्वेश्चंस को भी कर रहे होंगे, राइट. सो यू विल हैव टू अटेंड द फुल लेक्चर, राइट. सो टुडेज टॉपिक इज होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स को जानने से पहले मुझे क्या क्या जानना ज़रूरी है? नंबर लाइन भी नो. एक नंबर लाइन होती है जिसपे 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाता है, ठीक है. यू हैव सीन द स्केल, राइट. जो स्केल है वो बेसिकली नंबर लाइन है. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. लास्ट चैप्टर कौन सा था बताओ, ठीक है. उस लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पढ़े थे. कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, कहाँ से हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट मोस्ट साइड से. Then what you will be able to do after doing this, representing the whole numbers on number line, understanding the properties of whole numbers, associative property, commutative property, all this we will study in this chapter, okay, in this lecture. whole numbers क्या होते हैं? Natural numbers are counting numbers, right. पर we never knew कि counting numbers के अंदर अब कुछ भी नहीं है. Means if there is nothing, if I say there is nothing in the box, right, or if there are 0 apples in the bag, then we did not have anything to count that nothing, ठीक है. उस nothing को count करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था. तो नीड जनरेट हुई ज़ीरो की. ज़ीरो को भी वही कहीं जगह देनी है, इज्जत देनी है. तो जब उसे दी तो वी डिड नॉट कॉल इट नेचुरल नंबर्स. वाई? बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, राइट. तो अब उसे जगह जब दी गई हमारी सीरीज़ के अंदर तो उसको बोला गया क्या? होल नंबर्स, ठीक है. तो देखो, होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय व्हाट? W से डिनोट करते हैं. एंड दिस इज द सेट. It starts from 0. 0 is the smallest whole number, and then it can go up till the numbers you know. ठीक है. So all natural numbers are whole numbers, but are all whole numbers natural numbers? No, it cannot be. Why? Because 0, it contains 0 as well, and 0 is not a नेचुरल नंबर, ओके. तो सारे जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे, बट सारे होल नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है? नंबर लाइन ये होती है. यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आगे तक जाता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम अब देख लेते हैं। इस तरह से आपकी जो स्केल है इट शोज द नंबर लाइन, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई ऑन नंबर लाइन 4 into 3। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन के ऊपर, मैं किस तरह से करूँगी, लेट्स सी दिस। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 देन 4 5 6 4 into 3, so this will be 3, then this will be 3, then 3 then 3 then 1 7 8 9 10 11 and 12, ठीक है। तो 4 into 3 मतलब कि क्या है, 4 टाइम्स में 3 जो सेपरेट मेरे वो हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करती जाऊंगी, ठीक है। किस तरह से, देखो 1 2 3 and 4, मतलब कि मुझे 3 यूनिट डिस्टेंस के कितने जंप्स लेने हैं, 4 जंप्स लेने हैं। तो मैंने 4 जंप्स ले लिए, 0 से स्टार्ट करते हुए 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। देखो 1 2 3 यूनिट, फिर 1 2 3 यूनिट के कितने जंप्स लिए मैंने, 1 2 3 and 4। ऑल्सो 4 into 3 आई नो इज 12। तो देखो 12 पर आ गए हम। इन दिस डायरेक्शन वी आर जंपिंग, इस डायरेक्शन में हम लोग जंप कर रहे हैं, तो आगे 12 तक मैं पहुंच गई, ठीक है। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन ऑन द नंबर लाइन। तो ये तो क्या है, मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया। इसी तरह से देखो सब्ट्रैक्शन भी करके देखते हैं अपन। सब्ट्रैक्शन अपन यहाँ कर लेते हैं। तो मुझे 7 - 5 करना है, राइट। 7 - 5 अगर करना है तो लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज 0 देन 1 देन 2 देन 3 4 5 6 and 7, ओके। यहाँ इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा बना देते हैं अपन एक, ठीक है, ऐसे। अब वो क्या बोल रहा है, 7 - 5। अब 7 - 5 अगर मुझे करना है तो लेट्स से अब मैं क्या करूँगी, रिवर्स में जंप करूँगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस साइड नहीं जा करके हम इस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 and 5, राइट। इस डायरेक्शन में हम लोग जंप कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग जंप कर रहे हैं। तो देखो 7 - 5 इज व्हाट, 2। I know that also we have come on 2 itself. So this is how we represent, or this is how we do operations on number line. I hope you have understood. मैंने 2 example ले लिए, you can do many more like this, right? Revision है ये, so I have told you how to do it. आप लोग भी पेपर पेन लेकर के बैठे एज वेल एज स्केल, प्लीज़ इसको स्केल से ड्रॉ किया करो, ठीक है। मैंने नहीं किया पर आप करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्वेश्चन करके देखते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, दीज हैव कम इन द ओलंपियाड्स, राइट, डिफरेंट ओलंपियाड्स। तो देखो क्या बोल रहा है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक जो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 7 11 12, ठीक है। तो जो एक के बाद एक आ रहा है उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अब वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका जो 2 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम नहीं है। देखते हैं अपन। 13 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 13 को आई कैन राइट इट एज 6 + 7, 6 + 7 इज 13। तो ये तो लिखा जा सकता है बिकॉज दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब 15 को देखते हैं, 15 को मैं लिख सकती हूँ 7 + 8। So 7 + 8 is again what, 15। 7 + 8 is 15, तो इसको भी लिख सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ नंबर। 23 11 + 12, 11 और 12 इज व्हाट, 23 अगेन, तो इसको भी मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर से लिख सकती हूँ। नेक्स्ट 26, क्या उसे आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, राइट। अगर आप करोगे 12 and 13 भी करोगे, 12 + 13 तो कितना हो जाएगा, 25, राइट। तो ये क्या हो रहा है, 11 12 किया तो 23 हो रहा है, 12 13 किया तो 25 हो रहा है।
तो इसका मतलब 26 जो है वो करेक्ट आंसर है. 26 कैन नॉट बी रिटन एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम. फॉर अ concert, Vishakha spent rupees this much, 4,74,560 on musical instruments, rupees 8,12,320 on food and rupees 3,28,254 on decoration. भाई बहुत खर्चा कर रही है ये. And rupees 56,480 on advertisements. Right, find the total amount spent by her. कुल मिला के आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करना है. मतलब you have to add what? You have to add this. ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स उसने किए हैं ना, जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं उन सबको ऐड कर दोगे. अब देखो आप चाहो तो पूरा भी ऐड कर सकते हो, पूरा ब्लॉक में लिख करके ऐड करना है, नहीं तो वी कैन डू दिस. देखो सबका वंस प्लेस पे देखो, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, दिस इज 4, राइट, देन दिस इज 0 0 0 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वंस प्लेस पर तो मेरे पास 4 आ रहा है. ऑप्शन में देखो वंस प्लेस पे 4 कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है और बी ऑप्शन में आ रहा है. ठीक है, दोनों में 4 आ रहा है. तो अब हम टेंस प्लेस को देखते हैं. टेंस प्लेस में क्या आ रहा है, 5 8 2 एंड 6. 8 + 2, देखो यहाँ पे टेंस प्लेस देखो, 8 2 कितना हो गया, 10 10 एंड 6 16 + 5 21. राइट, तो 2 आगे कैरी हो गया, बट नीचे क्या आया, 1 आया. आंसर में क्या आया, 1 आया. अब देखो टेंस प्लेस पे 1 कहाँ आ रहा है, इन दोनों में, यहाँ पे आ रहा है. तो इसका मतलब मेरा सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन मेरा सही हो गया. ठीक है, आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बट इट विल टेक सम टाइम ऑफ कोर्स. और क्योंकि हमारे पास ओलंपियाड्स में टाइम नहीं होता है बेटा, कम होता है, तो हमको जल्दी जल्दी इस तरह से देखना होता है कि वंस प्लेस पे देख लिया, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर टिक कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट में वंस वाले को डिजिट को ऐड कर लिया, फिर टेंस वाले को करके और देख लिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. पैटर्न्स इन होल नंबर्स. अब देखो होल नंबर्स में पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, लाइन में बनेगा. डॉट पैटर्न जो रहता है, हम डॉट पैटर्न की बात करें, लाइन, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल. ओके, तो अब लाइन है, लाइन तो आप किसी की भी बना सकते हो. जैसे अगर मैं 7 नंबर लेती हूँ, इफ़ आई टेक 7 नंबर, तो इसका भी लाइन तो बन जाएगा. किस तरह से, 1 2 3, सॉरी हाँ, प्रॉपरली डॉट बना लेना भाई, 3 4 5 6 7. ठीक है, तो आप 7 डॉट्स बना सकते हो. 11 चाहो, 171 चाहो, कैसा भी, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, मतलब 0 का तो नहीं बनेगा. 1 का है तो 1 का भी बन गया, ये हो गया 1 का लाइन बन गया. ठीक है, 2 का तो 2 का भी लाइन बन गया. तो लाइन बेसिकली हर नंबर का बन सकता है. ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. लाइन कैन बी मेड फॉर एनी नंबर, है ना, ये हम समझ गए. नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर पैटर्न. अब स्क्वायर पैटर्न अगर बनाना है मुझे, डॉट से स्क्वायर पैटर्न बनाना है, तो देखो इसको अपन समझते हैं. अब देखो जैसे आई स्टार्टेड विथ 1 2 3 एंड 4. ठीक है, इस तरह से मैंने एक स्क्वायर पैटर्न बनाया. कितने नंबर्स हैं, कितने डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं मेरे पास, 4 डॉट्स हैं. क्या मैं इस 4 को इस तरह से लिख सकती हूँ, कैन आई राइट इट लाइक 1 + 3. 4 को मैं 1 + 3 भी लिख सकती हूँ. राइट, अब नेक्स्ट फिर से देखो, लेट्स से मैंने इसे बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट, कितने डॉट्स हैं, 9 हैं. कैन आई राइट इट लाइक दिस, 1 + 3 + 5. आई कैन राइट 9 लाइक दिस, राइट, 1 + 3 + 5 मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे. एक और देखते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ठीक है, सो दिस इज अगेन अ स्क्वायर. स्क्वायर बनाया मैंने यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. सो दिस इज अगेन अ स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, 16. अब इस 16 को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 1 + 3 1 + 3 + 5. ऑफ कोर्स आई कैन राइट इट. I can write it like this, 1 + 3 + 5 + 7. I can write it like this. I can write it like in this form, right? तो अब समझो, अब इसको अपन देखते हैं. इसके अंदर what can I see? 4 9 16. One thing to see, एक चीज़ आपको देखी आपने,
और एक क्या है 1+3, 1+3+5, 1+3+5+7, यानी कि ऑड नंबर्स का एडिशन। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। एक तो ये कि अगर आप स्क्वायर पैटर्न निकाल रहे हो, ठीक है, स्क्वायर पैटर्न अगर आपको दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका सम किस तरह से निकल जाएगा, एन स्क्वायर से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर स्क्वायर पैटर्न, फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पैटर्न क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पैटर्न वुड बी एन स्क्वायर। ठीक है, एन क्या है, साइड, द साइड इज एन, एन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एन इंटू एन, आई कैन राइट एन एज n into n, which is also what, formula to calculate the area of a square। square में क्या होता है let's say ये एक square है, this is n and n, और I can say side into side। ठीक है, side into side होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो आपको एक साइड पता लग जाएगी, एक साइड में कितने डॉट्स हैं ये पता लग जाएंगे आपको, तो यू कैन कैलकुलेट, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं हम टोटल डॉट्स कितने हैं, 4 हैं, 1+3। अब एक चीज़ तो मैं समझ गई कि जब भी मुझे स्क्वायर पैटर्न्स में निकालना है, नंबर ऑफ डॉट्स निकालने हैं, ठीक है, फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पैटर्न, नंबर ऑफ डॉट्स अगर मुझे निकालने हैं एक स्क्वायर पैटर्न के अंदर, तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपली n स्क्वायर कर दूंगी, राइट। ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे समझना, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक और चीज़ देखो, दैट 1+3, 1+3+5, 1+3+5+7, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज व्हाट, n स्क्वायर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें पता लगी, एक तो ये कि अगर हम स्क्वायर जो है, स्क्वायर डॉट पैटर्न के अंदर अगर हम स्क्वायर नंबर ऑफ डॉट्स पता करना चाहते हैं कि किसी स्क्वायर पैटर्न में कितने हैं, तो दैट आई कैन कैलकुलेट बाय n स्क्वायर, राइट। ऑल्सो at the same time we have find out that sum of odd consecutive numbers, एक के बाद एक जो odd consecutive numbers आ रहे हैं उनका सम कितना हुआ, n स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया, उसको करके देख लिया। सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड। अगर कहीं पर भी वो पूछता है कि नंबर ऑफ डॉट्स बताओ, सो यू कैन कैलकुलेट इट बाय n स्क्वायर, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं ऊपर इसके अंदर, रेक्टेंगुलर पैटर्न देखते हैं। अब देखो, लेट्स से मैंने बनाया 2 लाइन्स, सॉरी 2 डॉट्स, तो इज इट अ रेक्टेंगल, प्लीज टेल मी। यस, दिस इज अ रेक्टेंगल। 2 जो है, 2 नंबर जो है, इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। हाउ, दिस कंटेन्स व्हाट, 1 row and 2 columns. Yes, it is containing 1 row and 2 columns. See, 1 row and 2 columns. So this forms what, this forms what, a rectangle, right? 2 is also a rectangle, 2 numbers also forming a rectangle. So next एक और देखते हैं अपन एग्जाम्पल। लेट्स से वी राइट 6, ठीक है, 6 को करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है रेक्टेंगल है। देखो 2 rows and 3 columns, 2 rows and 3 columns है। अगेन 12 करते हैं अपन, 12 को करके देखते हैं, और आई विल राइट इट हियर, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। दिस इज 2, दिस इज 6, लेट्स फॉर्म इट फॉर 12। ठीक है, 12 के लिए फॉर्म करते हैं अपन, 1 2 3, 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, सो हाउ मेनी डॉट्स हैव आई मेड, कितने डॉट्स मैंने बनाए, मैंने बनाए 12। देखो 12 डॉट्स बना दिए मैंने। अब इसमें एक चीज़ समझना, एक पैटर्न समझना इसके अंदर। दिस इज होल नंबर्स इज ऑल अबाउट पैटर्न हमने और कहाँ देखा है, नंबर सीरीज के अंदर। मैथ का जो फर्स्ट लेक्चर है, जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज नंबर सीरीज विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। उसके वीडियोस हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। तो उसके अंदर भी नंबर सीरीज में भी हम क्या करते हैं, पैटर्न डिड्यूस करते हैं। सो दिस इज जस्ट द सेम। ठीक है, यहाँ पे भी पैटर्न देखो। अब क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, 1 + 1, राइट। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 + 1, विच इज अगेन, दिस इज व्हाट, 1 × 2,
दिस इज व्हाट 2 into 3. अब let's write 12 also in the same process. So can I write it like this, 3 into 3 plus 1, which is again what 3 into 4. देख भी सकते हैं हम, there are 3 rows and 4 columns, right? तो अब मैं इससे क्या पता कर सकती हूँ? Can I write it like this, that formula to find dots for rectangular pattern. Formula to find dots for rectangular pattern क्या हुआ? For rectangular pattern क्या होगा? It will be n plus 1. It will be n plus 1, right? दिख रहा है मुझे n plus 1 दिख रहा है इसके अंदर. स्क्वायर जो रेक्टेंगल पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न जो है उसमें मुझे क्या दिख रहा है? n plus 1, राइट. सी इट है, 3 plus 1, 2 plus 1, 1 plus 1, राइट. तो इसी पे हम बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. देखो वो पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज इन अ रेक्टेंगल पैटर्न हैविंग 156 डॉट्स. ठीक है, अब वो बता रहा है कि डॉट्स कितने हैं? 156. तो मैं क्या करूँगी? फॉर्मूला क्या है? Formula to calculate is n plus 1. तो what will I do? 156 equals to n plus 1, right? तो अब calculate करो, ये कितना हो जाएगा? This will be multiplication of what? 156 किसका multiplication होता है? Let's do it as 12 into 13. 12 into 13 करके देखो फटाफट से. वैसे तो you can calculate it, इसको आप ऐसे calculate कर सकते हो, n square plus 1. इसको इधर ले जाओगे तो दिस विल बी 156 के लिए बोल रहा है ना? यस. तो ये इस तरह से नहीं होगा बिकॉज 155 इज़ नॉट अ स्क्वायर. दिस विल बी डन एज लाइक दिस. देखो 12 into 13 करो. 12 into 13 करोगे तो कितना आएगा? 156 आएगा. सो व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट नंबर ऑफ रोज either you can take it as 13 or you can take it as 12. तो number of rows कितनी हो जाएगी? number of rows would be 12. number of rows कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी उस पैटर्न में जहाँ पे 156 टोटल डॉट्स है, और number of columns कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे. ठीक है. so have you understood this? okay. आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको. नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न. अब ट्रायंगुलर पैटर्न में एक चीज़ समझना. लेट्स से आई मेड इट लाइक दिस. ये तो 1 है, ठीक है, दिस इज 1. नेक्स्ट मैंने बनाया लेट्स से 1. लेट्स मेक इट प्रॉपरली. 1 2 and 3. ठीक है. अब इस 3 को ये 3 ट्रायंगल में 3 बना दिया मैंने 3 पैटर्न में. ठीक है. अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ लेट्स से 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है. तो ये मैंने 1 के लिए बनाया है. दिस आई हैव मेड फॉर 1, दिस आई हैव मेड फॉर 3 एंड दिस आई हैव मेड फॉर 6 नंबर ऑफ डॉट्स है. ठीक. अब समझना है इसको इम्पॉर्टेंटली. लेट्स डू दिस. ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इस ट्रायंगल को मैं क्या करती हूँ? मैं इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ. कैसे करूँगी मैं? देखो. ठीक है. रेक्टेंगल बन गया ये. दिस हैज़ फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल. देखो इस तरह से ये एक रेक्टेंगल बन गया. ये एक रेक्टेंगल बन गया, राइट. दिस हैज़ फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल. अब इसी तरह मैं इसको भी फॉर्म कर देती हूँ. इसको भी मैं एक रेक्टेंगल बना देती हूँ. देखो वील गेट टू नो समथिंग हियर. क्या बनेगा? देखो समझते हैं अपन. 1 2 3 4 5 and here it will be here. Yes, इधर. Like this. This will be formed like this. और ये कैसे बन गया? Just see here. This has formed a rectangle. ठीक है. This has formed a rectangle. Now understand this कि rectangle के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? rectangle के लिए फॉर्मूला था n plus 1,
राइट। रेक्टेंगुलर के लिए आई हैड अ फॉर्मूला दैट इज n+1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सी देखो मैं हाफ के लिए बात कर रही हूँ, नॉट हियर, मैं हाफ के लिए बात कर रही हूँ विच इज दिस, राइट। मतलब आधे आधे ट्राइंगल के लिए बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर भी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। ट्राइंगल आधा आधा, मतलब जो रेक्टेंगल है वो आधा हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, रेक्टेंगल के फॉर्मूला का बाई 2 हाफ हो गया उसका, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल को हाफ कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिमिलरली जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर n+1 अपॉन 2, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड कि ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो कैसे आ रहा है, ऑल्सो सी हियर, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, इस रो के अंदर 1 है, ठीक है, इसके अंदर 1 प्लस यहाँ पे कितने हैं 2 है, राइट। इसके अंदर कितने हैं 1 प्लस यहाँ पे कितने डॉट्स हैं 2 प्लस यहाँ पे कितने डॉट्स हैं 3। सो व्हाट कैन आई से, यहाँ पे भी अगेन दो चीज़ें मुझे पता लगती है, जिस तरह से मैंने स्क्वायर पैटर्न में देखा था, यहाँ पर भी मुझे 3 चीज़ें क्या पता लगती है कि एक तो फॉर्मूला, दो चीज़ें मुझे क्या पता लगी, फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल पैटर्न is what, of course n+1/2, right, n+1/2 which we saw here, हमने इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे देख लिया। सेकेंड थिंग हियर इज, देखो यहाँ पे कितने डॉट्स हैं 1, फिर इसमें 2 डॉट्स, फिर इसमें 3 डॉट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स is also what, n+1/2। यानी कि दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली, क्या सीखी, एक तो ये कि इनका जो फॉर्मूला है वो n+1/2 से होगा, और दूसरा क्या होगा, जो सम है ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो कैसे निकलेगा, n+1/2 के फॉर्मूले से। तो हैव वी अंडरस्टूड दिस, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इसी के बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ ही इज आस्किंग हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन द 60th ट्राइंगल। 60th ट्राइंगल अगर मैं पूछूं कि कितने डॉट्स हैं तो क्या करोगे, काउंट करते रहोगे, बनाओगे उसको, काउंट करोगे, नहीं, वी हैव द फॉर्मूला नाउ, तो अपन क्या करेंगे, दिस विल बी लाइक दिस, नंबर ऑफ डॉट्स मुझे पता करने हैं, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे 60 + 1 अपॉन दिस इज 2, 60 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 30 × 61, 30 × 61 हो गया, कितना हो गया 1830, मतलब नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डॉट्स हो गए 1830। सो हैव वी अंडरस्टूड कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है, क्या हम समझ गए। लाइन किसी से भी बन सकती है, कितने भी डॉट्स हो सकते हैं, किसी भी नंबर की लाइन बन सकती है, ठीक है, 0 की नहीं बनेगी, राइट। देन स्क्वायर के अंदर क्या था, अगर आपको नंबर ऑफ डॉट्स निकालने हैं तो वी हैड द फॉर्मूला एज n², ठीक। और ऑल्सो व्हाट डिड आई टेल कि उसके अंदर जो ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उसका भी वो सम होता है। देन आई टोल्ड अबाउट रेक्टेंगल में n+1 था फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डॉट्स, and then in the triangle it was just half of the rectangle, that is n+1/2, and I also told you how to find the number of dots in the like relevant triangle or rectangle, ठीक है। So next let's see, this is the overall table. So if you want you can memorize it, आप चाहो तो memorize कर लो, नहीं तो I told you कि किस तरह से हम उसे reduce कर सकते हैं, right। So it is up to you, if you want to memorize you can have it, नहीं तो निकाल लेना, मैंने निकालने का method भी बता ही दिया है। Now pattern observation in numbers, अभी तक हमने pattern observation किस में पढ़ा, डॉट पैटर्न में, अब अपन पढ़ते हैं नंबर्स में, ठीक है। तो इसके अंदर पैटर्न देखो क्या बता रहा है, ऑब्जर्व द पैटर्न। अब ये बोल रहा है 117 + 9, हाउ कैन आई राइट इट।
I can write it like this, 117 प्लस 10 माइनस 1. 9 को मैं क्या 10 माइनस 1 लिख सकती हूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगा, राइट. अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं करती हूँ इसे 117 प्लस 10 कितना होता है 127 माइनस 1, 127 माइनस 1. अच्छा, वाई डू वी डू दीज ऑब्जर्वेशंस, नंबर पैटर्न्स के ऑब्जर्वेशंस हम क्यों करते हैं, टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग वी डू ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट. हम लोग को ये पैटर्न्स पता होने चाहिए, दिखने चाहिए, ठीक है. तो 127 माइनस 1, वेरी सिंपल, 126. अगैन सी द पैटर्न है. अब 117 माइनस 9 है, तो क्या मैं इसे माइनस 10 प्लस 1 लिख सकती हूँ. ऑफकोर्स आई कैन राइट इट. माइनस 10 प्लस 1 कितना होता है 9 होता है, माइनस 9 होता है मीन्स, राइट. सो नाउ आई विल डू इट. 117 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 117 इज 1, 117 माइनस 10 इज 107 एंड प्लस 1, तो ये कितना हो गया 108. दिस बिकम्स व्हाट 108. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अपन ऐसे सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. अगेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो 117. अब मैं इसको क्या कर दूंगी 100 माइनस 1, राइट. तो दिस बिकम्स व्हाट 217 माइनस 1 विच बिकम्स व्हाट 216. दिस बिकम्स 216. नेक्स्ट अगेन सिमिलर पैटर्न, सिमिलर बी और डी देखो एकदम एक जैसे, क्या हो जाएगा 117 माइनस 100 प्लस 1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 117 माइनस 100 कितना होगा 70 एंड देन प्लस 1. सो दिस बिकम्स व्हाट 80. सो दिस हैज़ रिड्यूस्ड आवर कैलकुलेशन स्पीड, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाएगी इससे, जब हम इस तरह के पैटर्न्स लगा करके हम अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो दिस मेक्स अ कैलकुलेशन इजी एंड मोर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इसको भी करके देखते हैं अपन. 84 इंटू 9. अब 84 इंटू 9 को व्हाट कैन आई राइट 10, सॉरी 9 एज आई कैन राइट इट एज 10 माइनस 1. अब देखो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको याद है, तो मैं क्या करूँगी पहले 84 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस 1 कर दूँगी, तो दिस बिकम्स व्हाट 840 माइनस 1. तो 840 माइनस 1 इज व्हाट 839, सॉरी दिस इज व्हाट 839. 839 gives what 839 प्लस 1 इज 840. ठीक, अब सिमिलरली 84 इंटू 99, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ 84 इंटू 100 माइनस 1. आई कैन राइट 99 एज 100 माइनस 1. सो दिस बिकम्स व्हाट 8400 माइनस, सॉरी दिस इज 84 नॉट 1. आई एम सो सॉरी बेटा, दिस इज नॉट 84, दिस इज minus 84. Yes, we have to do minus 84 here. 840 and minus 1. Yes, this is 840 and then this is minus 84. So this becomes what? This becomes what? This is 6. Then this is 13 minus 8 is what? 5. 10 minus 4 is 6, then 13 minus 8 is 5 and this is 756. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 756 हो जाएगा. Again let's see this. This becomes what 8400 minus 84, right? And similarly you can write the same thing as 84 into 1000 minus 1, which is again same thing. इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो 84 and minus 84. You can do it like this. तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, राइट. सिमिलरली we can do the same thing here as well. 96 into, अब 5 है तो 5 को what can I write? I can write it as 10 upon 2. तो ये क्या हो जाएगा 960 upon 2 which is again what and 0. 480, ये 480 हो गया. 96 इंटू 5 को मैंने 480 डायरेक्ट कैसे लिखा 96
5 को लिखा मैंने 10/2 एंड आई कैन सॉल्व इट टू 480. नेक्स्ट 96 into 25. तो अगेन 25 को हाउ कैन आई राइट? I can write it as 100/4. 25 I can write it as 100/4. Again this becomes 96 100/4. So this becomes what? 2400. This becomes what? 2400. Right? अब देखो 96 into 125. अब कहाँ तो आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं. अब देखो यहाँ पे फटक से आंसर आ जाएगा. क्या आएगा? 96 into 1000/8. I can write 125 as 1000/8. So this becomes what? 96,000/8, which is again what? 12,000. ठीक है, तो अब इसको मैंने फटाफट से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दीज आर द पैटर्न्स विच यू नीड टू सी. अगर इस तरह के पैटर्न से आप करेंगे सो दिस हेल्प्स इन आवर कैलकुलेशन बेसिकली. एंड ऑल्सो जो पैटर्न्स है वो हम कहाँ देखते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, नंबर सीरीज़ के अंदर भी. राइट, सो दिस इज़ अप फॉर टुडे. आज के लिए इतना ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड जितना भी मैंने समझाया वो सब. We did few questions which have come in the exam as well. So in the last I'll be giving you practice questions which you need to do. I hope you have kept proper notes. सारे notes आपने properly बनाए हैं, because in the next class you must be prepared. You must be revised. You must have revised. ठीक है, आपने revise कर I hope कि आप revise करेंगे. Right, and कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.